Example is prove that b minus a upon 1 plus b square less than tan inverse b minus tan inverse a less than b minus a divided by 1 plus a square, where interval is 0 less than a less than b less than 1, and along with that we have to show show that pi by 4 plus 3 by 25 less than tan inverse 4 by 3 less than pi by 4 प्लस 1/6। ओके, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं दिया है कुछ नहीं, इसे ऑब्जर्व करके हमें डिसाइड करना है फंक्शन क्या है और इंटरवल क्या। तो फर्स्ट स्टेप, सॉल्यूशन स्टेप 1। नाउ लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अब हमें फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन कौन दिख रहा है आपको? फंक्शन इज tan inverse x and interval is this. Okay, interval is our AB. So interval is AB and value of AB is lies between 0 and 1. ओके, लास्ट जो दो एग्जांपल लिए थे कॉचेस के, उसमें इंटरवल ए बी दिया था और उसके प्रूफ में भी ए बी इन्वॉल्व था। लाइक दैट यहाँ पे भी आपके प्रूफ में पूरा ए बी इन्वॉल्व हुआ है। तो आवर इंटरवल इज ए बी एंड दैट ए बी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। So we have to check continuity and differentiability in all three cases, all three mean values. So here we also check its continuity and differentiability. So first, continuity. So given function tan inverse x, which is continuous in all interval, because sin cos also continuous, tan also continuous, so its inverse is also continuous. Therefore the given function f of x is equals to tan inverse x is always continuous in any interval. This implies given f of x is continuous in closed interval AB. Next condition is differentiability. We have to differentiate this function to check differentiability. Given function is tan inverse x. So differentiation of this tan inverse, differentiate with respect to x, and differentiation of this tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Correct? Yes, sir. Okay, 1 upon 1 plus x square. Now, our interval is open interval AB, and this AB lies between 0 and 1. So there is a no number for which this 1 upon 1 plus x square becomes infinite. Okay, so this means f of x is our differentiable. Therefore, which is not infinite in open interval AB. Okay, so first condition, second condition is satisfied. Now, here not given which Rolle's theorem we have to use. Okay, we have Rolle's mean value theorem, we have Lagrange's mean value theorem, and we have Cauchy's mean value theorem. अब इसमें से कौन सा यूज करना है तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में हमें कौन लगता है? एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे खाली एफ ऑफ एक्स दिया है, तो ये सीएमवीटी तो नहीं आएगा। आरएमवीटी में चेक करना होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, और हम tan का डायग्राम निकालते हैं तो वो tan इनवर्स डायग्राम समथिंग ऐसे आती है। ओके, सो दिस इज आल्सो नॉट इन
क्या है RMAT में। ओके, tan इनवर्स 1 0 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो RMAT में नहीं आएगा। तो बचा कौन? LMAT। और LMAT में आपने देखा होगा f डैश ऑफ c कैसे निकाला जाता है? f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है b माइनस a हमारे प्रूफ में इन्वॉल्व है, तो ये किसमें जाएगा? वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल यूजिंग LMAT। गॉट इट? Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. We have to solve this using LMAT. Now, so both conditions of LMAT are satisfied. Both conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied. Then there exists at least one C belongs to AB such that f dash of C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A. So जो वैल्यू लगने वाले लिखने की जरूरत है क्या? यहाँ पे लिखता हूँ, चलो। f of x है tan इनवर्स x, f dash of x है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। a और b इंटरवल a b है, सो f dash of c is 1/1 plus c square, f of b is tan inverse b, f of a is tan inverse a divided by b minus a. ओके, कहाँ तक समझ में आया? वी हैव प्रूव्ड LMAT। Yes. ओके, अब हमें क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन का हमारा टारगेट क्या है? वी हैव टू शो दिस इनइक्वालिटी। ओके, तो उसके लिए कैसे जाते हैं हम? स्टेप बाय स्टेप देखिए। स्टेप सेकंड में हम सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमने LMAT प्रूव किया, स्टेप सेकंड में रिक्वायर्ड प्रूव करते हैं। ओके, यहाँ पे LMAT क्या बताता है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट C बिलोंग्स टू A एंड B। तो ऐसे होता है A लेस देन C लेस देन B, C लाइज बिटवीन AB, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Now according to proof we need 1 plus A square 1 plus B square. Okay, so according to that we square all these quantities. Okay, so squaring each term. Okay, तो स्क्वायर करते तो क्या मिलेगा हमें? A square लेस देन C square लेस देन B square. ओके, अब इनइक्वालिटी कैसे चेंज होती है उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, नहीं तो आगे जाके आपको पता नहीं चलेगा कि इक्वालिटी चेंज क्यों हो गई। तो अगर मैं ऐसे कहूँ 1 2 3, 2 लाइन बिटवीन 1 एंड 3। ओके, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इफ आई स्क्वायर ऑल दिस थिंग, तो मुझे क्या मिलता है? 1 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो स्क्वायर करने से भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होते, मीन्स 4 लाइज बिटवीन 1 एंड 9। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ? Yes, sir. Okay, now we need 1 plus A square 1 plus B square in our proof, so add 1 in each term। हर एक टर्म में 1 ऐड करो तो हमें क्या मिलेगा? 1 plus A square लेस देन 1 plus C square लेस देन 1 plus B square। ओके, अब इनइक्वालिटी मैंने चेंज नहीं क्यों की? क्योंकि अगर आप इसमें भी 1 ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे 2 मिलता है, यहाँ पे 5 मिलता है, यहाँ पे 10 मिलता है, एंड दिस 5 लाइज बिटवीन 2 एंड 10। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अब क्या करना है हमें? ये डिनोमिनेटर में चाहिए 1 plus A square 1 plus B square। ओके, तो हमें रेसिप्रोकल लेना है, तो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या होता है? 1/2 1/5 1/10। अब इनइक्वालिटी देखो, 1/2 की वैल्यू क्या है? 0.5, 1/5 की वैल्यू है 0.2 और 1/10 की वैल्यू है 0.1। ओके, अब 0.5 और 0.2 में से कौन बड़ा है? 0.5। 0.2 0.1 में से कौन बड़ा है? 0.2। मीन्स व्हेन वी टेक रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी चेंज लाइक दैट,
here also when we take reciprocal, taking reciprocal of each term, मतलब आप यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लोगे तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज होगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब 1 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। 1 प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस सी स्क्वायर 1/1 प्लस सी स्क्वायर है tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए। मैं यहाँ पे स्टार लिखता हूँ और ये वैल्यू हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन स्टार से वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर दैन tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए एंड दिस इज ग्रेटर दैन 1 प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें? प्रूफ में b माइनस ए न्यूमरेटर में चाहिए और बीच में खाली हमें tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स ए चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए, और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ओके, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई बाय 10, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 1 आता है और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो b माइनस ए से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब कोई बोलेगा सर ये आपने कैसे कहा कि ये पॉजिटिव नंबर है? क्योंकि दिया हुआ इंटरवल हमारा ऐसे है, 0 लेस देन a लेस देन b लेस देन 1 एंड b इज ग्रेटर देन a, इसलिए a आपका पॉजिटिव टर्म है। ओके, तो b माइनस ए पॉजिटिव है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो b माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ए और न्यूमरेटर वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें b माइनस ए 1 प्लस बी स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फर्स्ट प्रूफ। ओके, ऐसे लेस देन क्या है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इसको आगे लेंगे तो b minus a upon 1 plus b square, this quantity is less than tan inverse b minus tan inverse a and this quantity is less than b minus a divided by 1 plus a square. Okay, this is our first proof. So it is required ये हमने तो फर्स्ट प्रूफ निकाला है। हेंस शो दैट का है। ओके, हेंस शो दैट 5/4 प्लस 3/25 लेस देन tan इनवर्स 4/3 लेस देन 5/4 प्लस 1/6 ऐसे का। अब एक क्वांटिटी लाना है हमें। ओके, तो क्वांटिटी लाने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, अगर रफली लिखना चाहते हो तो ये लिख लो ताकि हमें आगे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें क्या चाहिए? 5/4 प्लस 3/25। ओके, इक्वेशन में, ओके, इक्वेशन में कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें रिक्वायर्ड प्रूफ मिले?
ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू शो दैट, हमें क्या शो दिखाना है, we have to show that pi by 4 plus 3 by 25 less than tan inverse 4 by 3 minus sorry less than pi by 4 plus 1 by 6, ये चाहिए हमें। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सोचो। we have to substitute value of a and b, ए एंड बी की कौन सी वैल्यू रखेंगे ताकि हमें रिक्वायर्ड प्रूफ मिले। ओके, तो ए की वैल्यू 1, Yes, sir. 4/3 रख के देखते हैं हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आता है क्या। सो बी इज 4/3 minus 1 divided by 1 plus 16/9, डायरेक्टली स्क्वायर करके लिखता हूँ मैं यहाँ पे, लेस देन tan इनवर्स 4/3 minus tan inverse 1 less than value of b is 4/3 minus a is 1 and 1 plus 1. Okay, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो we will get here 4 minus 1, so 4 minus 3 it is 1/3 divided by 9 plus 16/9. This is less than tan inverse 4/3 and this tan inverse 1 is 5/4, यहाँ पे मिलेगा 1/3 divided by 2, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं 1/3 9/25 less than tan inverse 4/3 minus 5/4, which is 2 by sorry it is 1/6, तो 3 3 are 25, ये minus 5/4 दोनों तरफ जाएगा तो ऐड होगा, तो हमें मिलेगा 5/4 plus 3/25 less than tan inverse 4/3 less than 5/4 plus 1/6। आई थिंक यही प्रूफ चाहिए था हमें।